Hi guys, today's video is very special video for IIM Dreamers. So all the aspirants those who are seeking IPM program admission in IIMs through IPMAT Indore, you will get admission in IIM Ranchi. For Jammu and Bodh Gaya, you have to write JIPMAT exam. So basically all the IPM programs preparation will talk about. So 200 plus days we have left with how we can utilize these days along with our 12th board preparation. So do watch this video till the end. IPMAT Indore, Rohtak, JIPMAT. ये तीन एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी हैंडी एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग. Alright, so before we start the videos, want to tell you about the batches for IPM programs. So at Manure we have launched the batches which take care of your live class, book, shortcuts, doubt class, recorded videos, mentorship will be there, then 10,000 plus question, WhatsApp group and test series. So these are the curriculum of your batch. To join the batches, kindly contact on this number, and to join us for the online program, visit menuedu.com/bbentrance. Now next is mantras. If you are dreaming for IIM, तो ये mantras तो होने ही चाहिए. This should be your attitude. So these are the mantras, 5 mantras we follow at Manure. If you want to achieve anything in life, if you apply these mantras, definitely it will help you. First is nothing but hard and smart work. So मेहनत तो करनी है but थोड़े से smart तरीके से. You need to be motivated, very important throughout your journey, throughout your preparation. There will be time that you might stuck, you might flunk, you might not cope up with the topic, so it's okay. That is a journey of your preparation, but during your preparation don't get demotivated. You have to be motivated. Third is you need to be consistent and dedicated towards your preparation. And fourth, achievable attitude, very important. One seat surely I'll be getting in IIM. ये attitude के साथ अगर prepare करोगे, so definitely you will achieve your goal. And one goal, no option. या तो IIM चाहिए या तो फिर कुछ नहीं चाहिए. IIMs or nothing. This should be your slogan, right? So IPMAT Indore Rohtak अगर लिख रहे हो या तो फिर JIPMAT. Do have this mindset. So all the IIM dreamers, I advise you people to follow these mantras and definitely you will achieve your goal. Now let's talk section by section and what to do for the section. First section is nothing but your quantitative aptitude, which is nothing but the maths, and 50% से ज़्यादा जो जनता है they are worried about this section because advanced level का maths आएगा and there will be a logical with mathematics and question type will be a bit tricky and logical. मतलब maths तो है ही but tricky question होंगे आपके. So arithmetic, these are the topic you have to prepare. Algebra and modern maths, this is what the topic you have to prepare. Number system, geometry mensuration, then DI. So this is what the complete syllabus for your math section. IPMAT इंदौर में जो कॉन्ट का लेवल है दैट इज़ अ बिट हायर. बाकी रोहतक के एग्जाम में एंड जिपमैट में इतना टफ नहीं आएगा बट इंदौर इज टफ एग्जाम. ओके, व्हाट आई वांट फ्रॉम यू पीपल, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क ऑन द बेसिक कैलकुलेशन. ठीक है, जितने लोग का मैथ्स वीक है बेसिक पे काम करो. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बोर्ड मास, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, क्यूब, फ्रैक्शन, ये सारा एरिया. तो बेसिक कैलकुलेशन. ओके, देन ईच टॉपिक कंसेप्ट वर्कआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन कम्स योर प्रैक्टिस. After then shortcut. This is what the layer wise preparation we do at Manure in our live class. ये तरीके से अगर प्रिपेयर करोगे तो मैथ्स इजी लगेगा, टफ नहीं लगेगा. बट डायरेक्टली इफ यू विल जंप टू द क्वेश्चन, प्रैक्टिस करना चालू करोगे और ये दो पार्ट पे वर्कआउट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी. सो प्रिपरेशन ऑर्डर फॉर द क्वांट सेक्शन शुड बी अरिथमेटिक विद DI, ज्योमेट्री मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा एंड मॉडर्न मैथ्स. दिस शुड बी द ऑर्डर ऑफ प्रिपरेशन फॉर द क्वांट एरिया. Also do remember in exam you won't be able to attempt all the question. Apart from that there is a negative marking. तो जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो राइट होने चाहिए. तो पूरे सिलेबस पे वर्कआउट अभी करना, अपने पास टाइम है, बट इन एग्जाम यू वोंट बी एबल टू कंप्लीट ऑल दी क्वेश्चंस. तो एक टाइम के बाद यू शुड रियलाइज दिस पार्ट कि ये वाला टॉपिक जो है वो टफ है, आई एम नॉट एबल टू कोप अप विद दिस टॉपिक, साइड में कर दो. बट मेजर जो एरिया आप प्रिपेयर करोगे उस पर यू शुड बी थरो विथ वॉट एवर क्वेश्चन टाइप यू विल बी गेटिंग फ्रॉम दोज टॉपिक, यू शुड नेल दैट क्वेश्चन. Right. So if you look at the syllabus, 8, 9, 10 का maths है and 11, 12 maths, function, matrices, determinant, all these topics. So those who have quit their maths after 10th, तो आप जो 10th तक का सिलेबस है उस पर ज़्यादा फोकस करो एंड दूसरे जो टॉपिक है उस पर भी वर्कआउट करो. इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि एग्जाम में वहाँ से इजी क्वेश्चन आ गया तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो. इफ द क्वेश्चन इज टफ तो वैसे भी छोड़ना है अपने को. सो नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कमिंग अप विद द कंप्लीट सेक्शन वाइज कट ऑफ और कितना मार्क्स लेके आओगे तो यू विल एंड अप विद द IIM. ये नेक्स्ट वीडियो रहेगा. और भी कोई अलग टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख के मुझे बता दो. आई विल बी डेफिनेटली मेकिंग द वीडियो ऑन द सेम. आफ्टर कॉन्ट हाईएस्ट स्कोरिंग एरिया जो IPM के एग्जाम में है दैट इज नथिंग बट इंग्लिश सेक्शन. 4 पार्ट्स में इट इज डिवाइडेड. वोकैब, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी. नाउ वोकैब, दीज आर द डिटेल्ड सिलेबस.
So for vocab, I all time advise Word Power Made Easy book, which is written by the Norman Lewis. इससे बेस्ट बुक मार्केट में नहीं है. अगर ये बुक आपने अच्छे से कर ली है, सो आपके एग्जाम में तो हेल्प होगा ही, प्लस आपके प्रोफेशनल लाइफ में, यू गो ऑन द जॉब, कॉर्पोरेट लाइफ में, वहाँ पे भी काफ़ी हेल्पफुल होगा ये vocab, बिकॉज इसमें काफ़ी एडवांस लेवल के vocab यू विल बी गेटिंग एंड यू आर गोइंग फॉर द मैनेजमेंट डोमेन यार. तो vocab तो थोड़े से एडवांस लेवल यूज़ करनी ही है आपको. ऑल्सो लेट मी टेल यू, IPM इंदौर के अंदर ओनली टॉपिक यू विल बी गेटिंग दैट इज द RC, पैराग्राफ जम्बल, पैरा कंप्लीशन एंड पैरा समरी. ये 3 टॉपिक ही आएंगे आपके इंग्लिश के सेक्शन में. एंड फॉर IIM रोहतक एंड जिपमैट पूरा डिटेल सिलेबस है जो मैंने लिस्ट आउट किया हुआ है. बट इंदौर का एग्जाम में मेजरली RC रीडिंग कॉम्पिटिशन आएगा, उसके बाद वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन और थोड़ा ग्रामर पे वर्कआउट कर लेना. दिस इज व्हाट द IIM इंदौर को लेकर के. बट जिपमैट भी टारगेट करना है अपने को, रोहतक भी टारगेट करना है, तो पूरा इंग्लिश का सिलेबस विच आई हैव लिस्टेड हेयर यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉपरली. Alright, so for grammar on your Manure portal there are 100 rules given. Just download that PDF and start going through it. Apart from this, there is a video section for the grammar rule. Watch all the videos of the grammar and jot down all the rules in the same PDF. So extra paper add करके सारे grammar के rule you should know, because based on those rules you will be getting the question in error detection, sentence improvement and correction. And ये सारे rules वो हैं जो frequently exam में repeat होते हैं. Okay, so grammar rule is something which can be developed in 1 or 2 months. अगर अच्छे से notes बना के prepare करोगे तो हो जाएगा. For RC, which is very important and very very highly weighted topic you can say, इसके लिए you need to read The Hindu. द हिंदू के अलावा कोई भी पेपर नहीं पढ़ना है, राइट. एंड इसमें भी क्या पढ़ना है, पेज 1 जस्ट टू अपडेट विद द करंट डेटा व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड यू एंड द एडिटोरियल पेज. ऑलराइट, सो पेज 1 एंड द एडिटोरियल पेज. ट्रस्ट में द हिंदू से बेस्ट न्यूज़पेपर मार्केट में नहीं है. एंड या इंग्लिश का लेवल भी इट इज़ लाइक अबव एवरेज. तो अगर आपकी इंग्लिश वीक है, बिलो एवरेज है, सो आई सजेस्ट यू कि इंडियन एक्सप्रेस से चालू करो. थोड़ी सी इंग्लिश का लेवल आपको इजी मिलेगा यहाँ पे. ओके, बट एक टाइम के बाद जस्ट स्टॉप रीडिंग इंडियन एक्सप्रेस. एक लेवल के बाद जस्ट शिफ्ट योर सेल्फ टूवर्ड्स द हिंदू. सो दोज हु आर वीक इन इंग्लिश कम्युनिकेशन वाइज और अंडरस्टैंडिंग वाइज, अभी से काम करना चालू कर दो. स्टिल यू हैव 200+ डेज इन योर हैंड. और एंट्रेंस तो क्रैक करना ही है, इंटरव्यू भी होगा आपका और आके प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको काम आएगा. तो कम्युनिकेशन इंग्लिश पे तो यार काम डेफिनेटली वी नीड टू वर्क ऑन. तो मैंने सब बता दिया, वो कैब कहाँ से करना है, कैसे वर्कआउट करना है. एंड या द हिंदू पढ़ रहे तो आपका ग्रामर, वो कैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग स्पीड, सब चीज़ डेवलप हो रही है. ओके, एंड ग्रामर को लेके एंड RC एवरीथिंग आई हैव डिस्कस. सो आई होप ये चीज़ क्लियर है कि कैसे वर्कआउट करना है इंग्लिश के एरिया को लेकर. नेक्स्ट इज नथिंग बट द लॉजिकल रीजनिंग. ओनली एनालिटिकल लॉजिक यू कैन एक्सपेक्ट इन IIM इंदौर. बाकी कुछ भी IIM इंदौर में नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा. बट व्हेन इट्स कम टू IPM रोहतक जिपमैट एग्जाम, तो फिर आपको ट्रेडिशनल लॉजिक भर भर के आएगा, वर्बल एंड क्रिटिकल आएगा एंड अरेंजमेंट, ये सब भर भर के आएंगे. मतलब इसको लेके सेपरेट सेक्शन है, राइट. तो पूरा अपने को प्रिपेयर करना पड़ेगा. सो दो जो ओनली टारगेटिंग फॉर IIM इंदौर, तो फिर एनालिटिकल पे काम करना. बट रोहतक और जिपमैट भी लिख रहे हो तो देन यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द टॉपिक लाइक ट्रेडिशनल रीजनिंग, verbal and critical and analytical. And very soon might other IIMs also start IPM program. लखनऊ and बैंगलोर न्यूज़ में है, quite possible कि चालू करे वो भी. So for logical reasoning it's like कि आप प्रैक्टिस करोगे आराम से हो जाएगा. The only problem or the trouble you can face in analytical reasoning, linear, circular distribution, all the puzzle and the arrangement part. बाकी कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आएगी. So for this if you have joined live class तो sufficient है, कुछ अलग से इसके लिए वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है. एंड स्कोरिंग एरिया है, तो रोहतक वालों की तो मतलब निकल पड़ी अगर अच्छे से लॉजिकल रीजनिंग करते हो. मैथ्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बाकी अगर इंग्लिश पे भी अच्छे से काम किया तो वहाँ पे भी स्कोर डेफिनेटली अच्छा आएगा अपना. ओके, नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योर प्रिपरेशन जर्नी. सो मे इज़ द आइडियल टाइम फॉर द एग्जाम, या तो फिर एंड ऑफ अप्रैल तक का डेट आपका एग्जाम का आ जाता है, राइट. एंड सितंबर इज़ ऑन गोइंग. अभी आप वीडियो थोड़ा लेट देख रहे हो, अक्टूबर नवंबर, तो उसके हिसाब से आपकी प्रिपरेशन को स्क्वीज करना, स्ट्रेटेजाइज करना. सो वेरी फर्स्ट व्हाट यू पीपल हैव टू डू, स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर. ये मस्ट डू वर्क है जो डेली बेसिस पे करना है. न्यूज़पेपर रीडिंग मॉर्निंग में 1 आवर इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है. 1 RC ऑन डेली बेसिस विद टाइमर. 500 वर्ड का RC है, 800 वर्ड का RC है, तो फिर 1000 वर्ड का RC है. टाइमर लगाओ और देखो वो RC को रीड करने में कितना टाइम लगा, और उसके ऊपर जो क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, उसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगा और कितनी एक्यूरेसी आ रही है आपकी, कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, राइट. जस्ट मेजर ऑल दिस एरिया. तो RC पे काम करना है. ग्रामर रूल एज आई मेंशन अर्लियर आपको उस पर काम करना है.
कॉन्ट के कंसेप्ट पे अच्छे से वर्कआउट करना है. कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना डिफिकल्ट होगा. एंड इन अ वीक 2 to 3 पजल अरेंजमेंट वाला पार्ट, 2 से 3 बहुत हो गया इन अ वीक. सो दीज आर द टास्क ऑन डेली एंड वीकली बेसिस. न्यूज़पेपर रीडिंग, आरसी, ग्रामर रूल, ये डेली बेसिस पे करना है. कॉन्ट के कंसेप्ट को रिवाइज करना है एंड ये वीकली बेसिस पे करना है आपको पजल. Alright, so I hope this much is clear. Now next is nothing but let's talk about the week wise workout. 12th को भी बैलेंस करना है अपने को और एंट्रेंस भी प्रिपेयर करना है. सो वी हैव मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. मंडे टू फ्राइडे आई वांट यू पीपल टू वर्क ऑन ओनली ऑन इंग्लिश प्लस लॉजिक. ये 5 डेज कोई अलग टॉपिक मैथ्स का नहीं पकड़ना है, बिकॉज मैथ्स इज द काइंड ऑफ अ टॉपिक जहाँ पे अपने को टाइम देना पड़ेगा. सैटरडे संडे इज फॉर मैथ्स, which is nothing but your quant. Alright, so all the students those who are in 12th standard, इस साल बोर्ड का भी प्रिपरेशन करना है और एंट्रेंस को भी बैलेंस करना है. तो ये हिसाब से मैं आइडिया दे रहा हूँ. अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, वीकेंड में भी मैथ्स को टाइम दे सकते हो, डेफिनेटली गो फॉर इट. सो मैथ्स में फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द टेम्परेचर आई मीन टू से वेयर यू स्टैंड, हाउ मच यू नो, कैलकुलेशन कैसा है आपका, ऑल दिस एरिया. ओके, सो सैटरडे संडे मिनिमम 5 आवर्स, तो 10+ आवर्स आई रिकमेंड यू फॉर दी मैथ्स सैटरडे संडे को मिला करके. उसके अंदर 2 टॉपिक आई एक्सपेक्ट कि 2 टॉपिक को आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2. सो 10 से अगर ज़्यादा आवर दे रहे हो तो 12 घंटे 2 टॉपिक. ऑल्सो यू नो कि मुझे सैटरडे संडे ये टॉपिक प्रैक्टिस करनी है, तो उसकी थ्योरी वाली पार्ट आप मंडे टू फ्राइडे के बीच में जस्ट गो थ्रू कर सकते हो कि एटलीस्ट थ्योरी पार्ट उसका क्लियर रहे. ओके, एंड मंडे टू फ्राइडे के बीच में आपको इंग्लिश के पे काम करना है सारे टॉपिक को लेकर के. उसके वीडियोस देख लोगे, लेक्चर्स देख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, हो जाएगा. इंग्लिश इतना टफ नहीं है. बट हाँ, न्यूज़पेपर रीडिंग कंटिन्यू मोड पे ऑन रखना, उसको ऑफ मत करना, नहीं तो प्रॉब्लम होगी आगे. ऑलराइट, एंड लॉजिक टाइम बिंग हो जाएगा, अपने पास काफ़ी टाइम है. तो सितंबर अक्टूबर इज द टाइम वेर यू शुड वर्क ऑन योर बेसिक पार्ट. ऑलराइट, एंड देन कंसेप्ट वाला पार्ट, योर ग्रामर, ऑल दिस पार्ट एंड द लेक्चर्स विच यू विल बी अटेंडिंग, एंड जो भी आपका टॉपिक होगा उसको लेकर के वर्कआउट करना है. तो बेसिकली मैथ्स में अरिथमेटिक पे ज़्यादा पहले ट्रिगर होगा, अरिथमेटिक प्लस DI. तो व्हाट आई रिकमेंड, सितंबर अक्टूबर अरिथमेटिक DI, एंड उसके बाद नंबर सिस्टम. आफ्टर देन दिसंबर जनवरी ज्योमेट्री मेंसुरेशन, आफ्टर देन योर अलजेब्रा एंड मॉडर्न मैथ्स. दिस शुड बी द ऑर्डर. सो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन, ये 5 मंथ्स ही अपने पास प्रिपरेशन को लेकर के. Feb और मार्च यू विल बी बिजी विथ योर 12th बोर्ड, अनलेस देयर इज एनी फ्लक्चुएशन इन योर 12th बोर्ड को लेकर के. बट यू शुड बी प्रिपेयर विथ कि फ्लक्चुएशन होगा, तो एंट्रेंस की प्रिपरेशन में कोई हैम्पर नहीं करना, कंटिन्यू मोड में ये चलते रहेगा. सो वंस वो बोर्ड गेट्स ओवर, तो अप्रैल का टाइम अपने पास मिलता है प्रिपरेशन को लेकर. दैट टाइम वी लॉन्च क्रैश कोर्स. सो बाय मार्च यू फिनिश विथ योर 12th बोर्ड. उसके बाद अप्रैल का टाइम अपने पास रिविजन के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए एंड मॉक पे वर्कआउट करने के लिए. बेसिकली आपका जैन ऑनवर्ड्स मॉक ट्रिगरिंग चालू हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट चालू हो जाएगा. एंड नवंबर दिसंबर, दिस इज व्हाट द टाइम वेयर यू विल बी वर्किंग मोर ऑन द प्रैक्टिस पार्ट, शॉर्टकट पार्ट, राइट, एंड द एग्जाम लेवल क्वेश्चंस. सो दिस इज व्हाट योर कंप्लीट प्रिपरेशन जर्नी. यू शुड अंडरस्टैंड 5 मंथ्स है, 5 मंथ्स इंटू 30, 150 डेज है. 200 डेज भी मैंने ज़्यादा बोल दिया क्योंकि 12th बोर्ड को भी बैलेंस करना. अगर आपका 12th बोर्ड नहीं है तो फिर अपने पास पूरा दिन है प्रिपरेशन के लिए, तो उसको उस हिसाब से यूटिलाइज करो टाइम को. एंड विद द माइंडसेट कि मैं एग्जाम क्रैक करने वाला हूँ, एंड आई विल बी श्योरली एंड अप विथ 1 सीट इन Indian Institute of Management, which is nothing but IIM. Alright, next is regarding the preparation tools which we follow at Maneuver. Step-wise preparation we do. Step 1, Step 2, Step 3 and Step 4. Step 1, video lectures you have to watch from your portal before you come for the class. Then your live lecture. Second, third is nothing but the practice part from the books, and after then test. Okay, so this is what the 4-step preparation you have to follow, and Step 5 is nothing but the revision part. So these are the 5-step preparation you can say one should follow if you are targeting for IIM. Alright, that's all in this video guys. I hope ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके प्रिपरेशन को लेकर के. एंड 2022 एंड 2023 की भी बैचेस लॉन्च हो गई है IPM और BBA प्रोग्राम्स को लेके. काइंडली कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर एंड यू कैन एनरोल फॉर द बैचेस. एंड सेपरेट यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किया हुआ है फॉर द IPM एंड BBA प्रोग्राम्स, मेनूवर BBA एंट्रेंस. सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. एंड या इंस्टाग्राम पे वो कैब को लेकर के डेली पोस्ट इज देयर, सो फॉलो कर लो इंस्टाग्राम लिंक. फेसबुक पे नए अपडेट्स एंड टेलीग्राम पे एग्जाम अपडेट्स नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे. तो सबका लिंक आई हैव मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो फॉर द ऑनलाइन प्रोग्राम्स. सो इन केस इफ यू वांट टू जॉइन अस फॉर द ऑनलाइन प्रोग्राम मॉक टेस्ट बुक्स, सो उसका भी लिंक आई हैव मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन. चेक आउट द डिस्क्रिप्शन. प्रिपेयर वेल
and definitely we end up with the one seat in IIM. All the very best. Thank you.